यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Morning, my dear loving children. Today I have some ideas, and some of the ideas are such which really jolts me from within. That's why I have chosen a word, paradox. Paradox. What is paradox? Paradox, intentionally I have taken this word in this corona, pandemic period. It sometimes really hurts me, sometimes it teaches me a lot, sometimes it really provokes me to choose for a word which really describe the current scenario in totality. इसका जो एग्जैक्ट पहलू है, इसका जो रूप है, नज़रिया है कोरोना वायरस का, कोरोना वायरस में बहुत सारी चीज़ ऐसे हुए जो कि लोगों को बिल्कुल हिला के रख दिया. I don't know what would happen when everything comes to normalcy. But as of now, it looks very strange and unimaginable that something would ever come to the platform of normalcy. So the word which I have chosen today is paradox. 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 What does paradox mean? As usual, my emphasis would be that children should learn the word first. देखो बच्चों, मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसा कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस एजुकेशन पॉलिसीज़ में एम्फेसिस दिया गया है ऑन इश्यूज विच रियली पर्टेन्स टू व्हाट रियली चिल्ड्रन थिंक फॉर. अभी हम अपने बच्चों को तोते की तरह पढ़ाते थे. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. ये बात दूसरी है कि पंजाब में कहीं कहीं पर एक स्कूल में मैंने देखा कि शिक्षिका पढ़ा रही थी A for सेब. मैंने कहा यार A for सेब कैसे होगा, A for तो एप्पल होना चाहिए. बोलता समझोगे तो सेब ही ना, इसलिए मैं पहले सेब पे ही आ जाती हूँ. That teacher was fabulous. She was so innocently describing A for सेब. मैंने कहा A for एप्पल बोलो एंड देन ट्रांसलेट इनटू हिंदी और गुरुमुखी वटेवर. बोलता नहीं यार, ये सारे बच्चे सेब घर में खाते हैं, तो ए से सेब हो जाएगा. मैंने लेकिन ए से सेब तो बना नहीं ना, एस से सेब हो सकता है, स से सेब हो सकता है. बोलता यार एप्पल समझाऊंगा तो उसे अंग्रेजी के एरिया में जाना पड़ेगा, एप्पल याद करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर उसकी ट्रांसलेशन करो हिंदी में या पंजाबी में, तब जाके बच्चा समझेगा. इसलिए मैंने पहले डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर दिया, ए फॉर सेव, नॉट एप्पल. सो व्हाट डज दिस लुक लाइक? दिस लुक लाइक कंप्लीटली पैराडॉक्सिकल. पैराडॉक्सिकल मतलब बिल्कुल हटके, अकल्पनीय, असोचनीय, ऐसा है ना. दिस इज समथिंग. अब देखो इसका डिक्शनरी लिटरल मीनिंग क्या बोलती है? समवन और समथिंग with qualities or features that seem to conflict with one another. यहाँ पे A for save conflict नहीं करता, it is just interpretational problem. हमारे जहन में बात घुस गई है कि A for apple, A बोले तो apple, A for apple, that kind of scenario, that kind of situation we are used to when we start our education. So the word paradoxical, paradox, something or someone with qualities or features that seem to conflict with one another. If we go in the historical perspective, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आपको याद होनी चाहिए
we were told that soon after independence, they were all scholars who came to occupy the main important chairs. And one of them was Kalam Azad. He became education minister. And you know, it is very startling, very surprising to hear that he never went to a school. He was not an educated man. Nobody knew where did he get some educational inputs from. So, what we should describe about this kind of scenario, how paradoxical it looks. That soon after independence, you needed someone like Sarvepalli Radhakrishnan or the likes of Sarvepalli Radhakrishnan, who could have come to the helm of affairs, who could have guided, who could have steered India in an area, in a zone where education should have been the hallmark. He could have been a pioneer. For instance, we had great personality in Sardar Patel, who not only integrated India, but all the princely states who were trying to do some hanky-panky with the sovereignty and sovereignty of India, they were shown the door. And integration of the country was complete, barring one state, Jammu and Kashmir, which unfortunately was not in the hand of Sardar Patel. So, my dear loving children, what I want to convey with the word paradoxical, एक ऐसा शब्द है जो कि विरोधाभास, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, 5th स्टैंडर्ड तक बच्चों को अपने लोकल लैंग्वेजेस में समझना होगा। अभी हमारे बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें पता नहीं, मम्मी पापा भी समझने में नहीं आता है, और स्कूल भेजते हैं गार्जियन, और यहाँ टीचर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, क्या क्या बोलते हैं उसको। मैं एक स्कूल में देख रहा था, APJ स्कूल में, एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट था, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, नर्सरी की इंटरव्यू होती है, APJ स्कूल का था, नोएडा सेक्टर 16 में है, बड़ा नामी ग्रामी स्कूल है। लेकिन आजकल के जो नामी ग्रामी स्कूल है ना, बस केवल नाम के ही हैं, काम के नहीं है। नाम किस बात का है? लंबी लंबी फी, बसेज एयर कंडीशन, पढ़ाने वाले मोटे मोटे तोंद वाले, बड़े पैसे वाले, और कोई कर्म के नहीं है। बच्चे ओवीज बड़े बड़े तोंद लेके स्कूल पहुंचते हैं, उनको बोले बेटा चलते बास्केटबॉल खेलते हैं, नहीं नहीं, आई वांट टू प्ले कैरम बोर्ड, लेट मी प्ले समथिंग लाइक चेस एंड ऑल। बड़े बड़े लोग। इफ यू एवर गो टू सम स्कूल्स इन मेन सिटी दिल्ली लाइक बाराखम्बा रोड मॉडर्न स्कूल, उनके बच्चे को देख लो, 11th-12th के बच्चे ऐसे लगेंगे, लगता है कोई सीधे हलवाई की दुकान से लौट के आ रहे हैं, मोटे मोटे मोछे। मैं ये नहीं कह सकता कि इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, मैं ये कह सकता हूं इट इज ए पैराडॉक्स दैट वी हैव एम्फसाइज्ड ऑन ऑल द इश्यूज but we fail to emphasize on the basic traits which forms the real inputs of educational paraphernalia. हम उसे एड्रेस नहीं करते। ये तो भला हो हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने सोचा, और इसलिए सोचा। आप लोग देखते होंगे कि कोई भी कभी अमीर घर से नहीं होता, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो, चाहे सुमित्रा नंदन पंत हो, चाहे आपके कोई भी हरिवंश राय बच्चन जी हो, ऑल वे आर फ्रॉम वेरी लो प्रोफाइल। इसको थोड़ा गरीबी को छिपाने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कुछ नहीं होती है, सब गरीब लोग होते हैं, क्योंकि जिनके पेट में अग्नि का ज्वाला जलता है ना, दे alone अंडरस्टैंड कि कविता कैसे लिखा जाता है। अमीर लोग कभी कविता नहीं लिख सकते, अमीर लोग कभी शायर नहीं बन सकते, बिकॉज दे हैव नो टाइम टू थिंक ऑन द इश्यूज विच रियली एड्रेसेस द मासेस।
तो ये कितनी बड़ी पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास। अब मैं एक चीज और बताता हूं, मैं गांव से रहने वाला हूं और गांव के बच्चों को देखता हूं, एवरीवन अपने माँ बाप को देखता है, उसकी ग्रोथ को देखता है, उसकी गरीबी को बचपन से देखता है, लेकिन नोबडी वांट्स टू बिकम ए फार्मर। वो आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, साइंटिस्ट बन जाएगा, लास्ट में खाएगा क्या? वही चावल दाल। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था हमारे कंट्री का, हमारे देश में A2 A1 सारे दूध मिला के टोटल मिल्क प्रोडक्शन है 80 80 करोड़ लीटर्स पर डे कंजम्पशन है, एंड द रियल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज ओनली 17 odd करोड़ लीटर्स। आप माइनस कर लो 80 में 17 का, चलो 20 का कर लो, तो मोटा मोटी 60 और 17 करते हो 63 करोड़ लीटर्स पर डे हम लोग जहर वाला दूध पी रहे हैं। वो कैसे बना हुआ होगा? गंदे पानी से, आपका सिंथेटिक यूज़ किया हुआ, डिटर्जेंट यूज़ किया हुआ, और बहुत सारे केमिकल्स बन गए, अरोमा कुछ कुछ डाल के, कुछ सिंथेटिक फ्लेवर मिला के बन जाता है दूध। तो ये पैराडॉक्स नहीं हुआ? ये विरोधाभास नहीं हुआ? हर कोई, एवरीबॉडी वांट्स टू स्टे इन सिटीज, एंड व्हाट सिटी लाइफ ऑफर्स यू? adulterated milk, adulterated vegetable, and all the forms of thing which you are getting are highly contaminated and adulterated. ये पैराडॉक्स नहीं हुआ? वही वर्ड मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। What does paradox mean? पैराडॉक्स मीन कि बिल्कुल विरोधाभास। कहता है ना कि जिस चीज़ की हमारी कामना होती है, चलो यार शहर में रहेंगे, शहर में अच्छी ज़िंदगी होगी, मेट्रो में चढ़ेंगे, कनॉट प्लेस में बैठेंगे, करोल बाग में जाके शॉपिंग करेंगे, एक से एक चोर लुचक्के लफंगे लोग वहाँ बैठे हुए हैं जेब कतरने के लिए। हमारी सिंप्लिसिटी ख़त्म हो जाती है। दैट रियली इट ट्रांसग्रेसेस टू द वेरी बेसिक इन द फैब्रिक फॉर विच वी इंडियंस आर नोन for. This is a paradox of our own ethical upbringing. How do we reconcile to the situation? We reconcile to the situation because we are in search of something which is a mirage. Mirage is not to be attained. It is just to allure you. It allures you. More you ask for it, more alluring it becomes. But never to be achieved. अब मैं वर्ड पे आता हूँ पैराडॉक्स पे। उसके पहले मैं समझा देता हूँ कि हमारे देश में 75% लोग पॉपुलेशन के एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। इंस्टेड दैट, आज ही मैं देख रहा था हमारे ऑनरेबल HRD मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट आई थी कि टीचर्स बनना IAS बनने से ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखो उन्होंने एक नया लकीर खींच दिया। पहले तो एक लकीर डिफिकल्ट थी कि IAS बनना इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज IAS द प्रोसीजर एंड द cumbersome years, number of years, right from the inception of your planning period till the final result comes, it is around 3 or 4 years planning in totality. After you have decided that you have to compete, you have to appear, take this examination. And just imagine, IAS तो बहुत कम लोग बन पाएंगे। IAS जब 1000 की लिस्ट निकलती है, उसमें अब तो एक नया लफड़ा है कि कुछ जनरल होगा, कुछ SC ST होगी, कुछ OBC होगा। मिला जुला के IAS के खाते में केवल 100 odd सीटें आती है। Roughly there are 26 services. So out of which IAS is not having more than 8800 seats. So it is made very difficult. आज जो मंत्री महोदय का जो स्टेटमेंट है दैट टीचर्स बिकमिंग ए टीचर्स वुड बी मोर, इट वुड बी टफर देन competing for an IAS. What does he want to communicate? That he don't want anyone to come to a teacher. भाई टीचर हमारे यहाँ लुक्रेटिव जॉब नहीं है। जब किसी को कोई काम नहीं मिलता है तो वो B.Ed करना शुरू करता है,
और हमारे कंट्री में बीएड भी 80% लोग ऐसे हैं जो कि फर्जी बीएड है, कहीं से बना लिया बिना क्लास किए हुए, और वो बीएड क्या सर्टिफिकेट लेके टीचर बन जाते हैं. इफ आवर मंत्री महोदय वांट्स टू करेक्ट द सिस्टम, देन इट्स फाइन, बट विदाउट करेक्टिंग द सिस्टम, विदाउट गिविंग ट्रू एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन, क्योंकि आज के ही बच्चे में से कुछ आईएएस बनेंगे, कुछ टीचर बनेंगे ना. यदि हमारा एजुकेशनल एपरेटस इतना लचर पचर रहेगा तो हाउ कैन वी ड्रीम ऑफ मेकिंग ए गुड टीचर? दिस इज ए ट्रेवेस्टी टू जस्टिस. इन अदर वर्ड्स, दिस इज ए पैराडॉक्सिकल सिचुएशन. कितना विरोधाभास है that we plan at the helm of affairs but without looking to the grassroots realities. जहां पे हमारे ध्यान देने की जरूरत है, अभी सीबीएसई हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी है, ये प्लान कर सकती है कि पूरा द कंट्री मेरा होमोजेनस है. कैसे भाई? जो दिल्ली की स्टैंडर्ड है वो गांव की स्टैंडर्ड हो जाएगी? दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गांव में हो जाएगी? यदि ये सब कुछ होमोजेनस होता तो गांव के लोग शहर क्यों भागते? दे रीच आउट टू द सिटीज लाइक ए मिराज. एक मृग तृष्णा के तहत वो शहरों में जाते हैं, विच दे गेट faltered later on. They find something which they never expected. So now let us come to the word paradox. ये हमारे देश की पैराडॉक्स ही है, विरोधाभास ही है, that we are not able to give a very good educational inputs to our children, but we expect so much at the advanced stage from these children. Mind you, my dear children, if a country wants to prosper, they have to invest most in education. Without education, no country can prosper. अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, आई थिंक आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन मैक्सिमम थ्रस्ट ऑन लोकल लैंग्वेज. क्योंकि अब देखो, अभी आप देख लो कि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो यू आर नॉट एबल टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली इन इंग्लिश. व्हाई? बिकॉज दैट्स नॉट योर मदर टंग. हम लोग पहले हिंदी में सोचते हैं, देन वी एनालाइज एंड कन्फिगर द वर्ड्स इन आवर ओन सिमुलेटर, दैट इज आवर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, देन वी स्पीक इट आउट. लेकिन अभी एक बात बोल दो, मगे में बोला जाए, व्हेन वी हैव टू स्पीक इन हिंदी, जस्ट सी द काइंड ऑफ द चिल्ड्रन, द अर्चिन्स ऑन द रोड साइड, the kind of fluency they have, the abuses. They use the most flavorous abuses. But if you ask them to speak the same abuses in forms of English slangs, they will falter. Why? Because they have to convert. They have to learn those words. जो कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे, पहले इनको स्कूलों में ऐसे ही सिखाया जाता है, शेरवुड में चले जाओ, दून्स में चले जाओ, सेंट लॉरेंस स्कूल लवडेल डोडा बेटा में चले जाओ. इनके बच्चे अंग्रेजी कम बोलते हैं, स्लैंग्स ज़्यादा बोलते हैं. और हमारे देश की यही निशानी है कि जो ज़्यादा स्लैंग बोलेगा, ही और शी कंसिडर टू बी स्मार्ट बॉय. अभी देखो हमारे कंट्री में एक सुशांत सिंह राजपूत बच्चा था, एक्टर था, ही कमिटेड सुसाइड. आई वुड नॉट से दैट ही शुड नॉट हैव डन दिस. आई डोंट नो विच सर्कमस्टांसेस लेड हिम टू कमिट सुसाइड, बट he was in a paradox. छोटे शहर से बड़े शहर में पहुंचा, सबसे दोस्ती कर रहा है, एक गर्लफ्रेंड छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरा छोड़ा, चौथा पकड़ा. लोग समझ गए कि what this boy is thinking all about. इसके पास पैसे हैं, करोड़ों आइटना शुरू कर दो. आज पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है कि जस्टिस शुड कम, जस्टिस शुड बी meted out to this boy, but nobody is coming to the crux. What is the issue? जैसे कहता है ना कि पंथी को छाया नहीं, फल लगे थे दूर. फिल्म इंडस्ट्री में पता चला कि वहाँ 5-6 खान हैं और 2-4 लोग और चोर लफंगे लोग हैं जो उन्होंने कार्टेल बनाया हुआ है. बोलता है वही हीरो हीरोइन का बेटा हीरो बनेगा, उसी हीरोइन की बेटी हीरोइन बनेगी, उसके अलावा बाहरी कोई भी टैलेंटेड आए उसको रिजेक्ट कर दो.
So that is also a paradox of our society. विरोधाभास, something very contradictory. कैसे कहेंगे हमारा देश is uniform and homogeneous? No, my country is heterogeneous and full of dichotomy, full of incongruities. एक होता है congruous. What is congruous? When there is a total systematic, correlation between theoretical assumption and practical operation. अभी आप दिल्ली में चले जाएं, आप थोड़े से भी इधर उधर हैं, लो बैकग्राउंड के हैं, तो आपका प्रिंसिपल जूते मार के निकाल देगा, वहाँ से निकाल देगी या निकाल देगा। दिल्ली में करीब करीब सारे स्कूलों के प्रिंसिपल लेडीज़ ही होती है। आई डोंट नो, मे बी बिकॉज लेडीज़ के पास सरस्वती और पार्वती, सरस्वती माता ज़्यादा विराजमान होती होंगी। You will not. Getting admission in Delhi in some of the school is just like talking to Bhagwan Indra. Very difficult. These are paradoxes of my life, of our life, of our society. अब देखो words क्या क्या है? Contradictions, dichotomies, incongruities. I hope I have covered these words. What is incongruity? Incongruous. It is just like a round peg goes in round hole, a square peg goes in a square hole. That is called congruous. But when I have to use that incongruous, a round peg in a square hole, a square peg in round hole, either peg will break, the hole will expand. You got my point? So, there are incongruities of different dimensions, which is not to be, which should not be. Why should a developing economy like country like ours should have these kind of incongruous circumstances, paradoxical situations everywhere? अभी देखो बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं, छोटे छोटे भैया लोग कहाँ कहाँ से कोई नेता खड़ा हो जाएगा, गांव के 10 लोगों को दारू पिलाया, मेरा नेता कैसा हो उसके जैसा हो, कुछ फ्रॉड टाइप के नेता लोग खड़े हो जाएंगे, पार्टी बना लेंगे, 4 पुट्ठों को जमा करेंगे, सबसे 2-2 10,000 रुपये लेंगे, नेता खड़ा हो गया। एंड व्हाट दे विल डू, दे विल फॉर्म पॉलिसीज फॉर यू, दे विल बिकम MLAs। इसको क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सेस। These are different paradoxes in our life. These are all incongruous situations. So my dear loving children, it is my aim is that maybe that I might have digressed on some of the issues which I wanted to communicate to you. लेकिन अब की जो पढ़ाई होगी ठोक के होगी। पहले हिंदी में समझ जाओ बेटा। अभी क्या होता है ना कि किसी भी सभा में चले जाओ, जो हिंदी में बोल दिया बोलता है क्या यार ये धोती छाप लोग आ गया। अभी मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे सोसाइटी हैं, आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो आपको अनपढ़ समझेगा। कहीं कहीं पे तो मैं भी जाता हूँ ना तो पहले 2-4 दिन अंग्रेजी बोल देता हूँ, तब समझ में आता है नहीं यार पढ़ा लिखा आदमी है। नहीं तो कहेगा यार पता नहीं कहाँ से अनपढ़ को उठा के लिया है। तो अंग्रेजी बोलना इतनी बड़ी बात है, लेकिन लानत है ऐसी अंग्रेजी पे जो कि हमें कुछ नहीं देता। हमारी वैल्यूज, हमारे रियल कल्चरल वैल्यूज किस में थी? हिंदी में, संस्कृत में। काश हम लोग आज फ्लुएंट संस्कृत बोल पाते, हिंदी बोल पाते। अंग्रेजी हमारी भाषा कभी नहीं थी, ये थोपा गया है। मैकोले ने जब इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, तो वहाँ के पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला कि इंडिया के ऊपर राज करना है तो सबसे पहले उसके कल्चर को नोचो, कल्चर को तबाह करो। जो कि खिलजीज ने नहीं किया, जो उसके बर्बाद करने के बाद, नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के बाद जो बच गया था, जब अंग्रेज लोग आए यहाँ पे आए तो सबसे पहले उन्होंने हमारे अंदर हिंदी की फीलिंग को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। संस्कृत विच इज कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, इसको तबाह कर दिया। शायद ही कहीं पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो कहीं संस्कृत यूनिवर्सिटी होगी। बनारस जब जाते हैं तो कहीं कहीं पर 2-4 यूनिवर्सिटीज़ का दर्शन हो जाता है।
अदरवाइज नो वे। अब बताओ, जो हमारी कहते हैं ना कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जननी, हमारी माता कौन है? संस्कृत, और उसी से हमारी सिविलाइजेशन हुई है। अब देखो, ये इससे बड़ा पैराडॉक्स क्या हो सकता है? इंडिया, द लैंड ऑफ हिंदूज, वहां पे सेंचुरीज से हम मार लात जूते खाते 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 हमारी ये स्टेटस हो गई है कि आज हम हिंदू बोलने से भी शर्म करते हैं। यदि बोल दोगे चुप रहो यार, वो बुरा मान जाएगा। सेकुलर बोलो, सेकुलर। और सेकुलरिज्म की ये हालत हो गई है कि हिंदुइज्म को जितना गाली दो उतना ही बड़ा आप सेकुलर हो। So, what are these? These are all paradoxes. These are all anomalies. These are all contradictions in our society. I believe that I have been successful in giving you some of the contextual examples. जो दिखता है वो होता नहीं, उसी को बोलते हैं पैराडॉक्स। आप हिंदी में समझिए और अंग्रेजी में बोलिए। Our aim should be that we should be solid in our own mother tongue, that is Hindi and Sanskrit. And later on we could be a terrific speaker in English too. लेकिन इंग्लिश के चक्कर में हम अपनी मातृभाषा हिंदी को और संस्कृत को भूल जाएं, एक कदापि पसंद नहीं। ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि होता है, इसी को बोलते हैं these are the paradoxes of our life, contradictions, विरोधाभास। इसके मीनिंग आप डिक्शनरी में देखें। फिर आप बोलेंगे कि सर आप हिंदी को उतना प्रचार कर रहे हो तो अंग्रेजी क्यों सिखाते हो? मैं इसलिए सिखाता हूँ ताकि आप हिंदी से आप स्ट्रांग हो जाएं। कहते हैं ना कि हम 2-3 साल तक रहते हैं तो अपनी माँ का दूध पीते हैं। माँ के दूध से सर्वोत्तम दूध कोई होता नहीं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हम अपना खाना खाना शुरू करते हैं। And we look out, we move out of our home to earn a language जो है ना, this language is because we have fallen back. यदि हमारे देश में आज़ादी के समय सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रधानमंत्री बन जाते या सरदार पटेल टाइप के प्रधानमंत्री बन जाते तो हम भी एक सुपर पावर होते। आज चाइना के पास चले जाओ, चाइना कोई अंग्रेजी नहीं जानता। वहाँ की पॉपुलेशन 0.08% भी अंग्रेजी नहीं जानती। लेकिन जस्ट सी, दे आर प्रोड्यूस फॉर द इंटायर वर्ल्ड। यू गो टू जर्मनी, द बेस्ट एग्जाम्पल। Germans, they hardly care for any other language, and they have disrespect for the languages, and they are very much chauvinist for their own language. Go to France, it's a lovely country. Go to French people, talk to them. They will just care you damn about you. Oh, bullshit. Either you learn my language or you get out. That is the spirit. Love for their own language. तो हमने कभी अपने को अपने लैंग्वेज के प्रति लव नहीं किया, प्यार नहीं किया। हमने उसको तंज भाव से देखा। दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स, विरोधाभास। आई बिलीव, I sincerely believe that I have been able to communicate what I wanted to. I never intend that I should speak English so that you should also speak English just for the heck of speaking English. आप हिंदी में पढ़ो, खूब बढ़िया समझो, मगी में समझो, एक बार पोस्ट हो जाओ, उसके बाद अंग्रेजी बोलना क्या है यार, चुटकी में बोलोगे, चुटकी में बोलोगे. So my dear loving children, you are the future of my nation. We have played our whatever little role we could do. We expect a lot from you. So wake, arise, and build your nation. Thank you very much. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि